بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نفسیات کے ماہرین کے مطابق 7 اشارے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کو پسند نہیں کرتا، ہونٹوں کو دبانا، آنکھیں چرانا، فیک مسکراہٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھتا ہے، اپنے درمیان کوئی رکاوٹ یا فاصلہ بنا لیتا ہے، بار بار ٹائم دیکھتے ہیں۔ خون دینے والے لوگوں کی زندگی دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک جوان اور صحت مند رہتے ہیں۔ ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ کم کھانے، کم سونے اور سکون سے رہنے میں لمبی عمر کا راز چھپا ہوا ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیئے ورنہ گلا خراب ہو سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی دوسرا کام کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روز آم کا اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں یا کھانے کی توہین کرتے ہیں، ان پر رزق کی تنگی جلدی آ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے چہرے پر کھیرے کا رس لگا کر 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ ٹھنڈی چیزوں کا مسلسل استعمال جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ کسی بچے کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوراً دور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے روزانہ کھانے کے ساتھ نیمبو نچوڑ کر کھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ نہار منہ روزانہ 2 کھیرے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ اور توانا رہے گا۔ روز ایک سیب کھانے والا بندہ زندگی بھر ڈاکٹروں کی دوا کا محتاج نہیں رہتا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لیں، آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ رات کو ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کو سونے کے دوران پیشاب بار بار تنگ نہیں کریں گی۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ مصالح نہ ہو جب تک کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا محسوس نہ کرے، کیونکہ ایک طرفہ توقعات آپ کو ذہنی طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہو ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ زندگی کسی کو مفت میں سبق نہیں دیتی۔ جب کوئی کہتا ہے زندگی نے مجھے سکھایا، یقیناً اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی رکھ کر کھانا چاہیے۔ ناظرین، انڈے کا زیادہ استعمال چہرے پر جھائیاں پیدا کرتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کہیں ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ جب کبھی ریل کا ایک ڈبہ شور مچاتے ہوئے گزرے
तो समझ लो कि वह खाली है। और जब कोई ताजर अपनी चीजों को चीख चीख कर बेच रहा हो तो जान लो कि उसकी चीजें बासी है। इंसान और चीजों में जो खाली होते हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, और जो हकीकत में मेहनती और संजीदा होते हैं वो वकार और खामोशी में भी अपना काम कर रहे होते हैं। नाजरीन, पेशाब का बार बार और कसरत से आना भूख और प्यास की ज़्यादती और आम कमजोरी यानी शुगर के आम अलामात है। पेशाब और खून में शक्कर मौजूद होती है, जिसकी फीसद मिकदार लैबोरेटरी के जरिए जांच करा के मालूम की जा सकती है। जामुन की गुठली 60 ग्राम खुश्क करके बारीक सुफूफ बना ले और 3 ग्राम सुफूफ पानी के साथ दिन में 2 बार ले। एक फाल और होशियार जिंदगी के लिए अपनी हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद रखना जरूरी है। हड्डियों की सेहत को सहारा देने का एक आसान और कुदरती तरीका यह है कि अपने रोजमर्रा के मामलात में तिल और शहद को शामिल करें। यह ताकतवर मुरकब जरूरी खुराक अज़्ज़ा से भरा हुआ है जो हड्डियों की मजबूती और मजमूई सेहत को फरोग देता है। एक अदद चाय का चम्मच तिल के बीज सियाह या सफ़ेद और 1 चाय का चम्मच कच्चा शहद मुरक्कब करने का एक तरीका मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए बीजों को बारीक पाउडर में पीस ले और शहद के साथ मिलाए, और आप यह मिक्सचर को दही या दलिए पर छिड़क सकते हैं ताकि सेहत में इजाफा हो। यह हड्डियों की मजबूती को सहारा देता है। तिल के बीज में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरे होते हैं। अहम मादनियात जो हड्डियों को घने और मजबूत रखते हैं उनमें जिंक भी होता है जो हड्डियों की मजबूती के किरदार को अदा करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और उसमें कुदरती सोजिश की खुसूसियत होती है जो न सिर्फ आपकी हड्डियां बल्कि आपके मुदाफियत निज़ाम और हाजमे को भी सहारा देती है। तिल जोड़ों की लचक को बेहतर बनाता है। तिल और शहद का इम्तिजाज जोड़ों के नक्ल व हरकत को बरकरार रखने और तकलीफ को कम करने में मदद कर सकता है। नाजरीन, किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच ले कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। जब जिगर कमजोर हो जाए, जिगर की गरमाइश शुरू हो जाए, जिस्म साफ खून बनाना कम कर दे या छोड़ दे और या जिगर में चर्बी बढ़ जाए तो हाथ पाँव की जलन शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, बेवक्त नींद, सुस्ती, सर दर्द, बात बात पर गुस्सा और बेचैनी जैसे मसाइल शामिल है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए खुश्क आंवला 100 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, देसी अजवाइन 50 ग्राम, तूत कासनी 50 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम और खुश्क अदरक 50 ग्राम। अगर हाई ब्लड प्रेशर ना हो तो 20 ग्राम काला नमक भी शामिल कर ले। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बारीक सूप बना ले और किसी शीशे की बोतल में महफूज कर ले और बोतल की ढक्कन टाइट बंद कर दे ताकि दवा हवा और नमी से महफूज रहे। हर खाने के 1 घंटा बाद आधा चाय का चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। हाथ पाँव की जलन खत्म होगी और जिगर को मजबूत बनाने के साथ साथ खून बनाने में भी मुफीद है। खुश्क आंवला विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से जिगर के लिए बहुत मुफीद है। कलौंजी तो मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा है। तूत कासिनी जिगर के मर्ज को खत्म कर देती है। नौशादर जिस्म में जहरीले मवाद को खारिज करता है। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तलबगार रहा तो वह शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। ज़्यादा नहाने से फालिज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा बढ़ जाता है। पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर खाएंगे तो कभी कमर का दर्द नहीं होगा। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। ज्यादा पानी पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियां मजबूत हो जाती है। नाजरीन, कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। थूक फेंकने से दिमाग की कमजोरी होती है। जिनको दायमी कब्ज का मसला हो वो सब
दवाइयाँ छोड़कर अमृत खाना शुरू कर दे। दायमी कब्ज से जल्द निजात मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाए। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो निहार मुंह, प्याज और शहद मिलाकर खाया करें। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज होता है। निहार मुंह रोजाना दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज होती है। सरसों के पत्ते पीसकर इसका लेप बनाकर सर में लगाने से गंजापन को दूर किया जा सकता है। इसको सर में लगाने से सर के बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। स्ट्रॉबेरी खा लेने से कब्ज और सीने की जलन से निजात मिलती है। जिसने रोजाना 6 अजवा खजूरें खा ली, उसको जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और ना ही जादू। जिस घर में किसी औरत का नाम फातिमा हो, ऐसे घर में मुफलिसी दाखिल नहीं होती। जिसके सर में दर्द हो, उसको चाहिए कि कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 42-43 तक अपने सर पर हाथ रखकर तिलावत करें। इंशाअल्लाह शिफा मिलेंगी। कलौंजी शुगर के बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और ईशा के वक्त पानी के साथ निगल ले। इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। जो लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते और उनको गालियां देते हैं, उन लोगों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ। हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती है। जो दमे के मर्ज में मुब्तला हो, उसको चाहिए अजवाइन खाने में इस्तेमाल करे। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई शय नहीं। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जो इंसान ज़ईफ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए, उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाने से बहुत ताकत बढ़ती है। मसूर की दाल खाने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफ़र करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।